وہ دور چلا گیا جب موٹر ویز گروی رکھوائے جاتے تھے, جب ایئرپورٹس گروی رکھوائے جاتے تھے قرضہ لینے کے لیے. آج نہ حکومت کو کوئی سوورن گارنٹی دینی پڑی, نہ ہی جو ہے وہ کوئی کل کو کسی کانفلکٹ کی شکل میں ہمارا اثاثہ اٹیچ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 1 جون اور دن ہے منگل کا. منگل کے روز عموماً وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, لیکن آج ان کا کوئٹہ کا دورہ تھا اور زیارت کے دورے پر رہے وہ, اس لیے آج کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا. تو آج وفاقی دارالحکومت میں چونکہ زیادہ پولیٹیکل ہیپننگز نہیں ہے گورنمنٹ کے لحاظ سے, تو اس لیے آج پازیٹیو پاکستان کے اوپر بات کریں گے, اور خاص طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور شاندار خبر جو پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے بہت ہی زبردست ہے. لیکن جتنی بڑی یہ خبر ہے اس کے اوپر اتنی ہی کم بات ہوئی ہے. آلدو وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کیا, لیکن چونکہ معاملہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اور لوگوں کو ابھی تک اس بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. خاص طور پر انٹرنیشنل فائنینشیل پلیئرز کس طرح سے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. امیجن کیجئے 201 بڑی عالمی کمپنیاں پاکستان کو اربوں ڈالرز دینے کے لیے تیار ہیں, اور پاکستان کو اس میں سے چند کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کرنا ہے. تو ہے نا یہ زبردست بات. لیکن اس کی تفصیل بتانے سے پہلے جو ابھی تک کی تازہ ترین خبر آئی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے, 1 منٹ میں جلدی سے وہ ڈسکس کر کے پھر اچھی خبر کے اوپر بات کروں گا. آپ کو معلوم ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کہ پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ کاروبار یا ریکارڈ بزنس دیکھا ہے. اربوں کے شیئرز چند گھنٹوں میں فروخت ہوئے ہیں اور کاروباری سرگرمیاں اس وقت اپنے پیک پر ہے. 2004 کے بعد پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا کہ کسی ایک کاروباری ہفتے کے مسلسل 3 دنوں میں 1 ارب سے زائد شیئرز خرید و فروخت ہوئے ہوں, اور یہ ریکارڈ ابھی بھی جاری ہے. اور آج پھر 2017 کے بعد وہ دن ہے جب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 48,000 پوائنٹ سے بھی اوپر چلا گیا ہے ماشاءاللہ. یعنی 48,191 پوائنٹس کے اوپر آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج بند ہوئی ہے, اور ایسا 2017 کے بعد پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے. اور آج کے دن پھر 1 ارب سے زائد شیئرز فروخت ہوئے ہیں, یعنی 1 ارب 39 کروڑ شیئرز کے سودے ہو چکے ہیں. تو یہ بہت زبردست خبریں ہیں معاشی اعتبار سے, میں نے کہا جلدی سے آپ کو بتاؤں. لیکن اس سے بھی ایک بڑی خبر ہے پاکستان کے معاشی معاملات کے حوالے سے, یا پاکستان کے جو بڑے میگا پروجیکٹس ہیں ان کی کمپلیشن کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اب تک ڈیم کیوں نہیں بن رہے تھے. یہ جو اب ڈیم بننے شروع ہوئے ہیں یہ 50 سالوں کے بعد, یہ منصوبے اب اچانک سے کیوں تیز کیے گئے ہیں؟ اس سے پہلے اتنی تیزی سے یہ معاملات کیوں آگے نہیں بڑھے؟ کیونکہ ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر پاکستان کو قرض لینے پڑتے تھے, اور چونکہ اس وقت پاکستان آلریڈی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, تو ایسے میں یہ منصوبے کس طرح سے مکمل کیے جائیں اس کے اوپر ایک بہت لمبی اور ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد چند فیصلے لیے گئے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے. اور اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ فرام ڈیکیڈز آف ڈارکنیس ٹو ڈیکیڈز آف ڈیمز کی طرف جایا جائے. یعنی وزیر اعظم عمران خان 2008 سے لے کر 2018 تک کے عرصے کو ڈیکیڈز آف ڈارکنیس کہتے ہیں. یعنی اس دور میں بہت زیادہ لوٹ مار ہوئی. کس طرح سے ہوئی وہ سب آپ جان چکے ہیں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن اب 2018 سے 2028 کو قرار دیا گیا ہے ڈیکیڈز آف ڈیمز, یعنی پاکستان میں ان 10 سالوں میں 10 بڑے اور چھوٹے ڈیمز بنائے جائیں گے. اس کے لیے پاکستان کو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا وہ اگر کیلکولیٹ کرنے لگیں تو شاید ابھی کیلکولیٹ نہ کر سکیں, کیونکہ بڑے پیمانے پر رقم خرچ ہونی ہے. تو ابتدائی طور پر پاکستان نے 3,000 ارب روپے سے 10 چھوٹے بڑے ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا. یعنی ابتدائی فائنینسنگ جو ہے وہ 3,000 ارب روپے کی رکھی جائے گی. اس کا اندازہ آپ نے بس اس بات سے لگانا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک سال میں جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف 4,000 ارب کے لگ بھگ ہے. آدھا پیسہ ہمیں ٹیکس کی ادائیگی کی مد میں عالمی اداروں کو ادا کرنا پڑتا ہے. جو پیسے بچتے ہیں اس میں سے اپنے ملک کا نظام بہت مشکل سے چل پاتا ہے. ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں, لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اس وقت جن میں پاکستان گھرا ہوا ہے. لیکن اب کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. ان ڈیموں کو ہر حال میں مکمل کرنے کا عزم کر رکھا ہے موجودہ حکومت نے, اور وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ یہ 5 سال میں مکمل ہوں گے یا 10 سال میں مکمل ہوں گے, ان کی اپنی حکومت میں مکمل ہوں گے یا کسی اور حکومت میں تکمیل تک پہنچیں گے. لیکن یہ ڈیم پاکستان کا مستقبل ہے, اس لیے اسے بننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے 2 آپشن ہے, یا تو پھر بڑے مارک اپ پر عالمی اداروں سے قرضہ لیا جائے اور ان قرضوں کا بوجھ پاکستان کے اوپر ڈال دیا جائے. نمبر 2, پاکستان کے قومی ادارے
गिरवी रख दिए जाएं, जैसे माजी में हुआ मोटर वे गिरवी रखी गई, एयरपोर्ट गिरवी रखा गया और उसका खुमियाजा हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल की सूरत में भुगतना पड़ा जब रेकॉर्डेड केस के सारे मामलात आपके सामने आए। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन आलमी सतह पर तो शर्मिंदगी हुई ना कि पाकिस्तान के असासे जो हैं वो ज़ब्त कर लिए गए। किसी ने हमारा त्यारा पकड़ कर ज़ब्त कर लिया, किसी ने हमारे होटल पकड़ कर ज़ब्त करने की कोशिश की। ये सारा कुछ इसलिए होता था कि सॉवरेन गारंटी के ऊपर, यानी पाकिस्तान की स्टेट या रियासत पाकिस्तान की गारंटी के ऊपर मामलात चलाए जा रहे थे, कर्ज़ लिए जा रहे थे, कुछ चीज़ें गिरवी रखवाई जा रही थी। लेकिन इन दो सूरतों से निकल कर एक तीसरे ऑप्शन की तरफ वफाकी हुकूमत गई है और पहली बार पाकिस्तान का ग्रीन यूरो बॉन्ड जारी किया गया। पहली बार पाकिस्तान की रियासत की गारंटी पर नहीं, पाकिस्तान के किसी इदारे की अपनी गारंटी पर हमें फाइनेंसिंग मिल रही है, और फाइनेंसिंग भी छोटी मोटी नहीं, अरबों डॉलर्स की। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट आप समझ लीजिए। आज से पहले हम जितने कर्जे ले रहे हैं वो रियासत पाकिस्तान की गारंटी पर होते हैं, यानी सॉवरेन गारंटी पर। अगर हम कर्ज़ वापस नहीं करते तो हमारा कोई ना कोई असासा वो ज़ब्त कर सकते हैं, जैसे मोटरवे या एयरपोर्ट, मैंने आपको मिसाल दी। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि किसी इदारे ने अपनी साख को इतना बेहतर और मजबूत कर दिया आलमी सतह पर कि आलमी इदारे रियासत पाकिस्तान की गारंटी के बगैर सिर्फ उस इदारे की क्रेडिबिलिटी की बेस पर पाकिस्तान को फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार हुए। और इस सूरत में पाकिस्तान ने क्या किया कि पहला ग्रीन यूरो बॉन्ड जारी किया $500 मिलियन का, या 50 करोड़ डॉलर्स के लिए। तो उस सूरत में हुआ ये कि लंदन स्टॉक मार्केट में ये यूरो बॉन्ड जारी किया गया और पाकिस्तान के दो बड़े डैम्स यानी मोहम्मद डैम और दिया मीर भाषा डैम को मुकम्मल करने के लिए बड़े आलमी फाइनेंशियल प्लेयर्स पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि ये फाइनेंसिंग पाकिस्तान के जो मौजूदा कर्ज़े हैं उनके ऊपर किसी तौर पर असरअंदाज नहीं होगी। ये पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्ज़ नहीं होगा, कोई सॉवरेन गारंटी नहीं होगी, कोई आपकी मोटरवे गिरवी नहीं होगी, कोई एयरपोर्ट गिरवी नहीं होगा, और ये इदारे की अपनी साख और क्रेडिबिलिटी की बेस पर पहली मरतबा फाइनेंसिंग हो रही है और बहुत ही मुनासिब मार्कअप के ऊपर ये फाइनेंसिंग होगी। तो ये पाकिस्तान की या हुकूमत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आम तौर पर ये देखा जाता है कि जब यूरो बॉन्ड जारी किया जाता है तो उसके बदले में 10, 12 या 18, 20 कंपनियां अपना इंटरेस्ट शो करती हैं, लेकिन इस बार 201 बड़ी आलमी कंपनियों ने पाकिस्तान से रब्ता करने की कोशिश की है और पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर फाइनेंसिंग की पेशकश की गई है। पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए $500 मिलियन मोहम्मद डैम और दिया मीर भाषा डैम की तकमील के लिए, लेकिन आलमी फाइनेंशियल इदारों ने पाकिस्तान को $3 अरब की पेशकश की है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में एक इदारा ऐसा है वापडा जो अपने पैरों पर खड़ा होकर इतनी बड़ी फाइनेंसिंग हासिल कर सकता है। इससे होगा क्या, अब पाकिस्तान के लिए इस तरह के जो बड़े बड़े मंसूबे हैं उनकी फाइनेंसिंग की राह खुल जाएगी। आज वापडा की जानिब से यूरो बॉन्ड का इजरा किया गया है, तो कल को कोई दूसरा इदारा भी कम अज़ कम अपने आप को इतना क्रेडिबल बना सकेगा कि वो आलमी सतह से फाइनेंसिंग हासिल करके अपने मामलात को चलाए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वापडा की जानिब से ये पैसे वापस ना किए गए तो उस सूरत में क्या होगा। उस सूरत में पाकिस्तान को बराह रास्त जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा क्योंकि सॉवरेन गारंटी नहीं है। लेकिन आलमी इदारों को ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है ये डैम्स, और जब ये डैम्स तेज़ी से बनते दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंड वर्क हो रहा है, पाकिस्तान अपने तौर पर भी अरबों डॉलर्स की फाइनेंसिंग कर रहा है, तो आलमी इदारों में भी ये एतमाद पाया गया कि वो पाकिस्तान को फाइनेंसिंग करें और बदले में जब ये डैम बन जाएंगे इससे बिजली पैदा होगी और उससे जो प्रॉफिट पाकिस्तान को या रियासत को हासिल होगा उसमें से उन्हें बाआसानी अदायगी की जा सकेगी। इब्तदाई जो रकम हासिल होगी मुनाफे की सूरत में उसमें से फाइनेंसिंग वापस कर दी जाएगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको जो मुआशी गुरूज़ हैं या हुकूमत की मुआशी टीम से हटके जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये एक अच्छा तरीका अपनाया कि अपने इदारे के ज़रिए इतनी बड़ी फाइनेंसिंग हासिल की है। और जो कंपनियां पाकिस्तान को कर्ज़ा देना चाह रही हैं या कर्ज़े देने के लिए पाकिस्तान से रब्ता कर रही हैं, उस एक एक कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो कम से कम 40-50 बिलियन डॉलर्स का है। तो ये छोटी कंपनियां नहीं है और 18-20 कंपनियां भी नहीं है, 201 बड़ी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को इतनी बड़ी फाइनेंसिंग कर रही हैं। कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म ने मोहम्मद डैम का दौरा किया और उस मौके पर मैं भी उनके साथ था। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू
हुई तो पता चला कि पाकिस्तान इस वक्त 3000 अरब से तकरीबन 10 छोटे बड़े मंसूबों के ऊपर काम कर रहा है, जो डैम्स के मंसूबे हैं या पानी और बिजली के मंसूबे हैं, और उस सूरत में पाकिस्तान को 10,000 मेगावाट सस्ती बिजली भी मिल सकेगी और तकरीबन 35,000 के करीब बराह रास्त मुलाजमतों के मौके भी मिलेंगे। इनमें जो अहम प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट ने फोकस कर रखा है, उनमें सबसे बड़ा मंसूबा दिया मेर भाषा डैम का है, जिससे कम अज़ कम 4500 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को मिल सकेगी और नवंबर 2025 में ये मंसूबा मुकम्मल होना है। इसके बाद मोहम्मद डैम है, तकरीबन 800 मेगावाट बिजली इस मंसूबे से भी पाकिस्तान को मिलेगी और नवंबर 2025 ही इसकी भी डेडलाइन दी गई है मुकम्मल होने के लिए। इसके अलावा दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, करम तुंगी डैम है, फिर तरबेला की एक्सटेंशन का एक मामला चल रहा है। तरबेला डैम का तोसी मंसूबा जो है वो भी इस वक्त पाइपलाइन में है, उसके ऊपर भी बड़े पैमाने पर रकम खर्च की जा रही है। कराची के लिए K4 मंसूबा है और छोटे बड़े कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर इस वक्त तेज़ी से काम हो रहा है और हुकूमत ये चाहती है कि बड़े पैमाने पर ये तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाए। इस बात को सोचे समझे बग़ैर कि ये मंसूबे किस गवर्नमेंट ने शुरू किए और किस गवर्नमेंट में मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि माजी में हुकूमतें मंसूबे इस किस्म के इसलिए शुरू नहीं करती थी कि ये मंसूबे लंबे हैं, पता नहीं अगली गवर्नमेंट उनको मिलेगी या नहीं, तो ये ना हो कि हमारे लगाए हुए मंसूबे का फ़ीता कोई दूसरी गवर्नमेंट काट जाए। अभी भी आपने देखा है किसी मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते हैं तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, शोर शराबा शुरू होता है कि ओ हो ये मंसूबा तो हमारी गवर्नमेंट में शुरू किया गया था। अरे आपकी गवर्नमेंट में शुरू किया गया था तो क्या उधर ही छोड़ दे उसको, कोई दूसरी गवर्नमेंट आके उसको मुकम्मल नहीं कर सकती क्या? ये क्रेडिट लेना ज़रूरी है कि ये हमारी गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, अगर शुरू हुआ था तो अच्छी बात है आपने किया, लेकिन किसी ना किसी ने तो आगे उसको कंप्लीट करना है, या फिर हुकूमतें इस बात को तय कर लें कि अगर ये मंसूबा किसी दूसरी गवर्नमेंट ने शुरू किया था तो जब तक वो वापस इक़्तिदार में नहीं आ जाती इसे अधूरा ही छोड़ा जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं लेकिन मंसूबों का चलना बहुत ज़रूरी है। और इसी हवाले से वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब से मैंने कुछ गुफ्तगू की है, उनका क्या कहना है इस सारे मामले पर, आप ज़रा ये भी सुनिए फिर वापस आता हूँ। पाकिस्तान के लिए जो है वो एक और खुशखबरी है। आपके इल्म में होना चाहिए कि जो डेकेड ऑफ डैम्स है, प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत के अंदर 10 डैम्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बनाए जा रहे हैं, जिन डैम से आपको 10,000 मेगावाट सस्ती बिजली जो है वो मिलेगी। अब इसके लिए आपने देखा कि मोहम्मद डैम के ऊपर, दिया मेर भाषा डैम के ऊपर और दीगर डैम्स के ऊपर काम शुरू हुआ है। जो सबसे बड़ी इसके अंदर चीज़ सामने आई है वो आई है जो वापडा ने ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड्स जारी किए हैं, जिसके अंदर आपको ये जान के खुशी होगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक विजन दिया था कि हम जो रियासती इदारे हैं उनको हम ठीक करेंगे, उनको अपने पाँव के ऊपर खड़े करेंगे। आज आप देखें कि वापडा की आलमी मालियाती इदारों के अंदर इतनी ज़बरदस्त रेपुटेशन है कि विदाउट एनी सॉवरेन गारंटी, विदाउट एनी गारंटी वापडा को $500 मिलियन के बॉन्ड्स की जो है वो इजरा हो चुका है और 201 कंपनीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। वापडा ने 500 मिलियन यूरो के बॉन्ड्स जारी किए थे, लेकिन $3 बिलियन की जो है वो दिलचस्पी का इजहार किया गया यूरो बॉन्ड्स के अंदर। और आप ये देखें कि दुनिया की 201 बड़ी कंपनीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अमूमन को 15-20 कंपनीज़ बड़ी आ जाएं तो उसको कामयाब जो है वो बॉन्ड का इजरा कहा जाता है, लेकिन एक गैर मैं समझता हूँ कि मामूली दिलचस्पी का इजहार किया गया है। जो बैनुल-अक़वामी मालियाती जो एजेंसीज़ हैं, जो कैपिटल मार्केट्स हैं, वहाँ के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्ट का इजहार किया गया और इससे जो पैसा आएगा वो पैसा दिया मीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम की जो है वो तकमील के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो डैम्स हैं, ये डैम्स पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी हैं, और जो पानी की कमी का हमें मुमकिन सामना है ये उसका ख़ात्मा करेंगे। तो लिहाजा पहली ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आई है और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, चेयरमैन वापडा का, उनकी सारी टीम का जो है उनको क्रेडिट जाता है। जिस तनदेही के साथ, जिस तरह दिन रात वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान को मज़ीद जो है वो कामयाबियाँ मिल रही हैं और इस पहली इन्वेस्टमेंट के बाद और राहें हमवार हो चुकी हैं। पाकिस्तान के और इदारे जो कि डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इवन जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारा, वो भी अब जाकर जो है वो इंटरनेशनल मालियाती जो कैपिटल मार्केट्स हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं,
وہاں سے پیسہ جمع کر سکتے ہیں اور اب پاکستان کو کوئی ساورن گارنٹی نہیں اس کے اوپر دینی پڑے گی. پاکستان کا کوئی بھی کسی کانفلکٹ کی صورت کے اندر پاکستان کا کوئی بھی اثاثہ اس کے اندر جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوگا. تو پاکستان میں یہ بڑے میگا پروجیکٹ انشاءاللہ آہستہ آہستہ لگتے جائیں گے. آج تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. خدا حافظ.